مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ستمبر کے وقت میں پاکستان پہنچیں گے۔ شریف فیملی کے ذرائع نے تصدیق کر دی، کہا کہ نواز شریف کو نون لیگ کے چند رہنماؤں نے ستمبر کے وقت میں آنے پر اصرار کیا۔ وزیر اعظم کے عہدے سے سرپردوش ہونے والے شہباز شریف پارٹی قائد سے ملاقات کے لیے آئندہ ہفتے لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے آئندہ 3 ہفتوں میں رانا ثناء اللہ، خواجہ عاشق، جاوید لطیف اور پرویز رشید کے دیگر بھی لندن آئیں گے۔ مقبوضہ وادی سمیت کشمیر کے دنیا بھر میں آج بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آل پارٹی حریت کانفرنس کال پر لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف مکمل ہڑتال پہ رہے۔ کشمیری برادری کی جانب سے یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا میں جنت نظیر خطے کے 70 سال سے بھارتی غاصبانہ قبضے اور تشدد کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، جہاں اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے کشمیریوں پر بھارتی افواج نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ بھارتی غاصبانہ قبضے کو مسترد کرتے ہوئے اپنی آزادی اور حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نواب الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مسافت تیز کر دی۔ نگراں وزیر اعظم نواب الحق کاکڑ نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رہنے کا فیصلہ کیا ہے، کہا کہ معاشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میرا پروٹوکول کم سے کم ہو جائے گا، اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ نگران کابینہ کے مختلف ناموں پر غور کی جا رہی ہے، جن میں جلیل عباس سیلانی، شعیب صدر، احسن گون اور سرفراز گپتی کے علاوہ ذوالفقار چیمہ کے نام زیر غور ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مرکزی صدر PTI چوہدری پرویز الہی کو جسمانی ریمانڈ پر 21 اگست تک نیب کی تحویل میں دے دیا۔ نیب لاہور کی ٹیم نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو مالی بے ضابطگیوں کے کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیا۔ نیب تحقیقات ٹیم نے صدر تحریک انصاف کے جسمانی ریمانڈ کی بھی استدعا کی ہے۔ بھارت کی جانب سے آدھی جارحیت کا پھر خطرہ، ستلج میں پانی چھوڑے جانے کا امکان، بھارت کی ڈیم بھکڑا اور پونگ بھر گئے، آئندہ چند روز میں ستلج میں سیلاب کا خدشہ۔ ستلج کے بہاؤ میں تیزی کے باعث پانی کی سطح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ PTM نے ڈپٹی کمشنر کو ستلج میں سیلاب کے خدشات کے پیش نظر مراسلہ بھیج دیا۔ نواب شاہ مسافر بس الٹ گئی، جس کی وجہ سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 15 شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق مسافر بس پنجاب سے کراچی جا رہی تھی کہ نواب شاہ کے کھجر تھانے کی حدود میں حادثہ پیش آ گیا۔ مرنے والوں میں ایک بچی بھی شامل ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، زخمیوں کو پیپلز میڈیکل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجوانی کے نواحی گاؤں میں 2 قبائل میں تصادم، ڈنڈے اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال، ایک شخص جاں بحق ہو گیا جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہیں۔ تصادم لاچاری اور دوسری گروپوں میں ہوا۔ مرنے والے شخص کی شناخت علی نواز لاچاری کے نام سے ہو گئی۔ پولیس نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ 2 نفر کین میں زرعی زمین پر پانی لگانے کے موقع پر تصادم ہوا، واقعے کا تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔
कसूर में DHQ अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत, मरीजों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। कोतबटा कला की बुशरा बीबी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया तो MS समेत सारा अमला जिसने आज़ादी की तकरीब मनाने में मसरूफ रहा। अमले ने वेंटिलेटर मशीन दस्तयाब न होने का बहाना बनाकर लाहौर रिलीज कर दिया। मरीजा को सेंट्रल पार्क अस्पताल शिफ्ट किया गया। देर होने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई। काड़ा पुलिस की जिला भर में जरान पेशा नासिर के खिलाफ मुंजिम अंदाज में कार्रवाइयां जारी हैं। थाना सदर नाला पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलविस 3 रुकन गैंग को गिरफ्तार कर दिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत की मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर दिया गया। पाक पसंद में म्यूनसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत, गला मंडी जोहर का मंजर पेश करने लगी। ताउन से बीमारियां फैलने लगी। जमींदारों का कहना है कि मुनासिब जगह न होने के बायस लोगों की इजनास तबाह हो रही हैं। मुताबिक बार अफसरान को निशानदही भी करवाई, कोई कार्रवाई न करता। गला मंडी के आड़तियों और किसानों का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, निकासियात के निज़ाम को बेहतर बनाने का भी मुतालबा। और कबूला शरीफ में जश्न आज़ादी की मुनाफत से तमांचेदार कबड्डी मैच का इनकाद, पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ों की बारिश कर दी। पाकिस्तान ड्रीम की टीम ने मैदान मार दिया। पहलवानों और शायकीन ने जीत की खुशी में खूब बंदे डाले। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रतोडेरो के करीब बाअसर अफराद का मेहनत कश की अराजी पर कब्जा। मुतासर शख्स का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की और कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कजन का बेटा हूँ। इलाके के बाअसर अफराद अयाज भुट्टो, फयाज भुट्टो और कामरान भुट्टो ने जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन हमले करके मेरी ज़रई अराजी पर काम बंद करवा देते हैं। बाअसर अफराद मुझे जानी माली नुकसान पहुंचा सकते हैं, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। SSP लाड़काना नोटिस नहीं। तंगवानी के नवाही गांव में 2 कबाइल में तसादुम, डंडे और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल। एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। तसादुम लशारी और बुगटी ग्रुपों में हुआ। मरने वाले शख्स की शनाख्त अली नवाज लशारी के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 नफर कैन में ज़रे जमीन पर पानी लगने के मामले पर तसादुम हुआ। वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। पतोकी में जिनसी अदवायात का मकरू धंधा करने वाले बाअसर शख्स का साथियों समेत ड्रग इंस्पेक्टर पर मुबैना तशद्दुद। ड्रग इंस्पेक्टर ने खुफिया इतलात पर हल्ला रोड पर छापा मारा। मोहसिन को रंगे हाथों पकड़कर जिनसी अदवायात बरामद की तो मुलजिम ने साथियों समेत हमला कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि मोहसिन बगैर लाइसेंस अदवायात की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर रहा था। चंद राहगीरों ने जान बचाई। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। फकीराबाद के नवाही गांव में चोर मस्जिद से सोलर प्लेट्स, बैटरियां और दीगर सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गया। शहरियों का वारदात पर शदीद एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने नारेबाजी भी की। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। शहरियों ने ASP गंबट से फौरी कार्रवाई का
مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ فقیر آباد کے نواحی گاؤں میں چور مسجد سے سولر پلیٹس، بیٹریاں اور دیگر سامان لے کر غائب ہو گیا۔ شہریوں کا واردات پر شدید احتجاج، پریس کلب کے سامنے نعرے بازی کی درخواست کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی۔ شہریوں نے ایس پی گمبٹ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ یوم آزادی کے سلسلے میں گھوٹکی کے دی ایجوکیٹر اسکول میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ مزید جانتے ہیں جاوید کھوسا کی اس رپورٹ میں۔ رتوڈورو نیشنل پریس کلب کی جانب سے وطن عزیز کی 76ویں یوم آزادی کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کر کے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں شہر کے سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت شہر کے معززین نے شرکت کی۔ اسی موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ نیشنل پریس کلب والوں کی جنہوں نے ہمیں جو ہے نا یہ موقع فراہم کیا کہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کی سیلیبریشن پروگرام میں ہمیں جو ہے نا انوائٹ کیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ آج جیسا کہ بھائی جان پورے ملک میں عید کے سما ہے، خوشی ہے، جوش ہے، جذبے کے ساتھ پاکستان کا سیلیبریشن جو ہے نا ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان ہمیں وجود میں جو ہے نا آیا تھا 1947 میں۔ آتے آتے سیلیبریشن کرتے کرتے پہلے ہمارے جشن آزادی کے حوالے سے کریسنٹ ماڈل سکول جھڈو میں یوم آزادی اور پوزیشن ہولڈر طلبہ طالبات میں انعامات تقسیم کرنے کی شاندار اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن زین العابدین لغاری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں چیئرمین ٹاؤن کمیٹی جھڈو میر کامران خان طالپر، ڈائریکٹر محمد افضال ارائیں اور حاجی محمد علی ناگوری بھی موجود تھے۔ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن زین العابدین لغاری کا کہنا تھا کہ جشن آزادی پر تقریبات کا مقصد مستقبل کے معماروں کے دلوں میں آزادی کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ ڈائریکٹر افضال ارائیں کا بھی کہنا تھا کہ اس ادارے کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور ملک کو اسلامی بنانے کے لیے اپنی تمام تر جدوجہد کو بروئے کار لانا چاہیے۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے سائنس اینڈ آرٹس میلے کا انعقاد کیا گیا۔ مالاکنڈ کے 30 سے زائد اسکولوں کے بچوں نے ماڈلز پیش کیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فاروق شاہ کی اس رپورٹ میں۔ آرمی پبلک اسکول ملاکنڈ پورٹ میں سجا سائنس اینڈ آرٹس میلہ مختلف اسکولوں کے 600 سے زائد طلباء و طالبات نے مختلف شعبوں سے متعلق ماڈل تیار کر کے نمائشی مقابلے کے لیے رکھے۔ یہاں پہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو اور گورنمنٹ اسکولوں کو موقع فراہم کیا، تو ایسے مواقع دینے چاہیے کیونکہ ابھی جو مستقبل ہے ان بچوں کا تو یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جانے کا ہے۔ وہ رٹا سسٹم اور وہی چیز کو ابھی ختم کروانا ہے تاکہ بچے بالکل آ جائے اور یہ اپنا پریکٹیکل کردار وہ ادا کرے۔ تو انشاءاللہ یہ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پہلے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آفاق آرمی کی طرف سے جو یہ آج کا جو موقع تھا اسی طرح تقاریر کا اور ایگزیبیشن کا، تو ہم سراہتے بھی ہیں کہ ان کے آنے سے انشاءاللہ یہاں EPS کے بچوں کو بھی ایک مثبت ایکٹیویٹی مل جائے گی اور ساتھ ہی پرائیویٹ سیکٹر کو، تو انشاءاللہ یہ ہم ان کے ساتھ فیوچر میں بالکل یہ کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ موقع تھا تو بہت ہی اچھا تھا، ایسے موقع ہونے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو ایک ایکسپوجر کا موقع ملے۔ یہ علاقے بیسیکلی جیسے کہ بیکورڈ ہیں یا کہ بچے بچیاں جو ہیں اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، لیکن آج کا جو پروگرام تھا اس میں بچوں نے اپنا ٹیلنٹ شو کیا، اپنے اسکلز دکھائے کہ یس وی کین بیٹ ایوری کنٹری اینڈ ایوری پلیٹ فارم۔ تو ایسی چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی اس کے لیے ہم تھینک یو کریں گے APS سسٹم کو کہ انہوں نے یہ موقع دیا بچے بچیوں کو کہ وہ آگے آئیں اور ڈفرینس میں حصہ لیں تاکہ بچوں کو جو ہے خود اعتمادی ملے، اسپیشلی بچیوں کو، کیونکہ اس علاقے کی بچیاں جو ہے
वो थोड़ी सी सोसाइटी की वजह से थोड़ी सी उनकी स्किल्स दब गई हैं। तो हमने कोशिश की है कि ये बच्चियाँ जो है आगे आए और कम्पीट करें हर एक फील्ड में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहते हैं कि इसको काफ़ी कवरेज मिले ताकि आने वाले वक्त में ये बच्चियाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के हायर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने स्किल जो है वो दिखा सकें। शुरका का कहना था कि नुमाइश नारंग मंडी की यूसी नंबर 1 के चेयरमैन चौधरी नवीद अहमद बच्ची एडवोकेट की जेर सदारत जश्न आज़ादी की मुनाफत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। केक भी काटा गया और मिठाई भी तकसीम की गई। मज़े जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट। नारंग मंडी के यूनियन काउंसिल नंबर 1 गरियाल कला में चेयरमैन चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट की जानब से जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब हुई, केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। इस मौका पर चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट ने खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मकसद के हसूल के लिए पाकिस्तान कायम किया, हम आज तक उन मकासद से महरूम हैं। अल्लाह हमारे वतन को दे दुगनी और आज चुगनी तरक्की अता फरमाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की जानब ले जा सकती है। नून लीग का साथ दें। हमारे लीडर राना तनवीर सन है जो हल्का में आवाम के दिलों में राज करते हैं। मजीद जानते हैं चौधरी नवीद अहमद भट्टी एडवोकेट की जुबानी। जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पर ये पाकिस्तान बना था, इस वजह से हमें चाहिए कि वो इत्तेहाद और यकीन के साथ मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हमें सब मिलकर ये पाकिस्तान की बका के लिए हमें ये काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि ये एक बंदा तो नहीं बदल सकता। जिस तरह मुस्लिम लीग नून है जिसकी क़यादत राना तनवीर हुसैन साहब कर रहे हैं, इनकी हम सरपरस्ती में हम बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी आवाम की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ना तो कोई ऐसी कोई जमात मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई है जो मुल्क की माशियत पर काबू पा सकती है। वो सिर्फ यही जमात है मुस्लिम लीग नून जो मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर है। 3-4 जमातों का जमा चुके हैं, पीपल पार्टी का जमा चुके हैं, इससे जमा चुके हैं, PTI का जमा चुके हैं। ये सब वहद हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करें। और इस खुशी के मौके पर मैं ये आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वह जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम भी करती है। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, वो सारी ये बनाती है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ये है कि मुल्क की तरक्की का जरिया ही है। पाकिस्तान हमारा है। रुख करे पाकपतन का, जहां पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी पाकपतन में भी मिली जोशो जज्बे से बनाया गया। दूसरे दिन भी तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, जिसमें शुरकाए वतन से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते रहे। रिपोर्ट देखिए साजिद तारिक सज्जाद चिश्ती की। पाकपतन में दिन भर जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने का सिलसिला जारी रहा। शहरियों ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए जगह जगह केक काटे। DC पाकपतन इम्तियाज अहमद खान खिची, DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने अस्पताल में मरीजों में आज़ादी गिफ्ट तकसीम किए और जेल में असीरान में तोहफ़ तकसीम किए। अब सुप्रिटेंडेंट जेल से रिक्वेस्ट की कि जितने हमारे यहाँ कैदी हैं उनको आज सही आज़ादी का मतलब बताना चाहिए, और हमने इनको बिल्कुल एट लार्ज अभी छोड़ा हुआ है और फुल यहाँ पे भंगड़े डाले, इन्होंने भंगड़े डाले हैं और मिली नगमे हमें सुनाए हैं। आज हम जो तकरीबात पुरअमन तरीके से मना रहे हैं उसकी एक कीमत है जो हमारे फौजी जवान बॉर्डर पर, भले वो वेस्टर्न बॉर्डर पे दहशतगर्दी के खिलाफ हो या LOC पर हमारे अजली दुश्मनों के खिलाफ हो, वो डेली अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में सुप्रीडेंट सबूर सुखेरा ने पुरवकार तकरीब का इनकाद किया, जहां असीरान ने मिली नगमे और आज़ादी की खुशी में भंगड़े डाले। हमारे पुलिस के जवान मुल्क के मुख्तलिफ खितों में किसी न किसी जगह पे दहशतगर्दों से लड़ते हुए, जराइम के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं। हमें उन्हें याद रखना चाहिए, हम उनके मकरूज हैं और ये उन्हीं की शहादतों का वसीला है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। जश्न आज़ादी की तकरीबात के दौरान वतन अजीज की खातिर जान निसार कर पकाड़ा DPO की हिदायत पर थाना A डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैती की नीयत से छुपे 3 डकैत पकड़े गए। 8 लाख की नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन बरामद। मुलजमान में बाबर अली, अकाल खुदूस और नदीम दीमी शामिल हैं। दर्जनों संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान ने मुतादिद वारदातों का एतराफ भी कर लिया।
मजीद जानते हैं आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में थाना ए डिवीजन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैत गैंग पुलिस को दर्जनों संगीन वारदातों में मतलूब था। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए SHO थाना ए डिवीजन एजाज अहमद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैती की नीयत से छुपे 3 डकैत गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार डकैत गैंग में बाबर अली, अताउल कुद्दूस और नदीम उर्फ दीमी शामिल हैं। SHO थाना ए डिवीजन ने बताया कि गिरफ्तार डकैत दर्जनों संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार डकैत गैंग ने मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ किया है और मजीद इंकशाफात मुतवक्को है। पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग से 8 लाख रुपए नकदी, जेवरात और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी को शाबाश दी और कहा कि समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा ताकि जिला में अमन की फिजा कायम हो सके। बेहिस्सी और लापरवाही की इंतहा हो गई। कसूर में DHP अस्पताल के डॉक्टरों की मुबैना गफलत, मरीजा ने तड़प तड़प के जान दे दी। कोट बका कला की बुशरा बीबी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया तो MS समेत सारा अमला ही जश्न आज़ादी की तकरीब में मसरूफ अमल रहा। अमले ने वेंटिलेटर मशीन दस्तयाब न होने का बहाना बनाकर लाहौर रिलीफ कर दिया। मरीजा को सेंट्रल पाक अस्पताल शिफ्ट किया गया। देर होने के बायस वो जिंदगी की बाजी हार गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि कसूर में GHQ अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत बेहिस्सी रूज पर पहुंच गई। मरीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। कोट बकाय कला की बुशरा बीबी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया तो MS समेत सारा अमला जश्न आज़ादी की तकरीब मनाने में मसरूफ था। अमले ने वेंटिलेटर मशीन दस्तयाब न होने का बहाना बनाकर लाहौर रिलीफ कर दिया। मरीजा को सेंट्रल पार्क अस्पताल शिफ्ट किया गया लेकिन देर होने की वजह से वो जिंदगी की बाजी हार गई। भारत की जानिब से आबी जारहियत का फिर खतरा, सतलुज में पानी छोड़े जाने का इम्कान। भारतीय टीम ढकड़ा और पूंग भर गए। आइंदा चंद रोज में सतलुज में सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। सतलुज के बहाव में तेजी के बायस पानी की सतह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी जा सकती है। PDMA ने डिप्टी कमिश्नर को सतलुज में पानी के खदशात के पेश नजर मुरासला जारी कर दिया। हालिया सैलाब से 20,000 एकड़ रकबा मुतासर हुआ जबकि लोग ताहाल खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने में मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहीम यार खान के ताउन से आबादपुर के नवाही इलाका में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में मेला मला खड़ा का इन्नकाद किया गया। जिले स्पोर्ट्स अफसर मोहम्मद इशफाक ने DC रहीम यार खान शकील अहमद भट्टी की जानिब से सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक बताइएगा। आबादपुर के नवाही इलाका मौजा नुनारी में 4 रोज़ा जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में सिंध पंजाब मलाखड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स रहीम यार खान की जानिब से मुनक्किद किया गया। मेला मलाखड़ा रुस्तों में सिंध पहलवान अरबाब हुसैन भट्टी, पहलवान शमन चना और रुस्तों में पंजाब पहलवान अब्दुल सलाम कोश, पहलवान रहीम बख्श झुलन, पहलवान हाकिम कोश, पहलवान रब नवाज अब्बासी, पहलवान जहद हुसैन झुलन और सिंध पंजाब के दीगर पहलवानों ने शिरकत की। आइए देखते हैं मलाखड़ा के मनाज़िर। मेला मलाखड़ा के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान शकील अहमद भट्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक ने पहलवानों को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। रिपोर्ट आशिक हुसैन झुलन के। अखाड़ा पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुंतज़िम अंदाज में कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। थाना सदर रेनाला पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलविस 3 रुकन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत की मोटरसाइकिल्स, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करते चलें इस बड़ी खबर के हवाले से कि अखाड़ा पुलिस की जिले भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुंतज़िम अंदाज में कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। थाना सदर रेनाला पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलविस 3 रुकन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों मालियत के मोटरसाइकिल्स, नकदी और असलहा भी बरामद कर लिया गया।
मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नारंग मंडी के सरहदी इलाके महता सौजा की यूसी चेयरमैन राना कुर्बान अली खान की यौम आज़ादी के सिलसिले में कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के यूनियन काउंसिल महता सौजा के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए रहनुमा राना कुर्बान अली खान ने जश्न आज़ादी के हवाले से कोहिनूर चैनल से बातें करते हुए कहा, हम राना तनवीर साहब की क़यादत में हल्का को खूबसूरत तरक्की याफ्ता बनाएंगे। अल्लाह हमारे वतन को खुशहाली व तरक्की अता फरमाए। मज़ीद जानते हैं राना कुर्बान अली खान की ज़ुबानी। जी, मैं राना कुर्बान चेयरमैन यूनियन काउंसिल महता सौजा तो बोल रहा जी। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को पैगाम देना चाਹੁੰਦਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ यूनियन काउंसिल चेयरमैन ਰਿਹਾ ਮੈਂ महता सौजा ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਬਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਸਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अल्लाह जावेद कुर्बान है जी। मैं साहबजादा चौधरी कुर्बान चेयरमैन यूनियन काउंसिल देंदा जी। मैं साहबजादा चौधरी कुर्बान दा ते हमारा जिहड़ा मुल्क है ना मुल्क पाकिस्तान ये बड़ियां कुर्बानियां दे के हासिल किया गया। मैनूं मेरा कौम वास्ते पैगाम है कि असीं इस मुल्क नूं मेहनत करन वास्ते तरक्की दिलाउण वास्ते दिन रात मेहनत करिए ते जिन्ना साडे कोल हो सकदा असीं इस मुल्क वास्ते फायदा पहुंचाइए अपने मुल्क नूं। पाकपतन में म्यूनसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत गल्ला मंडी जोहड़ का मंसर पेश करने लगी। ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। जमींदारों का कहना था कि मुनासिब जगह न होने के बायस करोड़ों की इजनास तबाह हो रही है। मुतादिद बार अफसरान को निशानदही भी करवाई गई है मगर ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में न लाई गई। गल्ला मंडी के आड़तियों और किसानों का म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा निकासियात के निज़ाम को भी दुरुस्त बनाने का मुतालबा कर दिया। तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कबूला शरीफ में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ों की बारिश की। पाकिस्तान ग्रीन की टीम ने मैदान मार लिया। पहलवानों और शायकीन ने जीत की खुशी में खूब भंगड़े भी ढाले। जीतने वाली टीम में नकद इनामात और ट्रॉफी भी तकसीम की गई। अली हसन की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की खसूसी हदायत पर जश्न आज़ादी को जोश व जज्बा के साथ मनाने के लिए जश्न आज़ादी की मुनासबत से इंतजामिया की जानब से आरीवाला के इलाका कबूला में थप्पड़ों वाली कबड्डी का नुमाइशी मैच करवाया गया जिसमें पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच में पहलवानों ने जोर आजमाई करते हुए एक दूसरे पर खूब थप्पड़ों की बारिश की। कोई जीता तो किसी ने खुले दिल से हार को तस्लीम किया। पाकिस्तान ग्रीन टीम ने मैदान मार लिया। मैच खेलने जी आरफ वाले बहुत अच्छा मैच और सरकारी लेवल तो है जी। तो ये मैच होने चाहिए ने जी क्योंकि बच्चे नशे तो बचेंगे जी, हस्पताल वीरान होंगे तो मैदान आबाद होंगे जी। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए ये इवेंट कराने दे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिची, बिजनेसमैन चौधरी ताहर जट, असिस्टेंट कमिश्नर मलक मोहम्मद अफजल और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर आरीवाला इमरान हुसैन शाहीन ने नुमाइशी मैच को खूब चार चांद लगाए। कौमें जो हैं अपने जो आज़ादी का फंक्शन है वो इसी तरह मनाती हैं और आज हमने कबड्डी के मैच में 2 लाख विनर को और 1 लाख जो रनर्स अप है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे अपने फिलंथ्रोपिस्ट को और यहाँ की इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे एसी साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एसी आरिफ वाला का, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है तकरीब का इनेकाद किया। और इसी तरह से आज रात को म्यूज़िकल नाइट है, कल पाकपतन में होगा। और ये मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद भी देता हूँ इस अज़म के साथ कि ज़िंदा कौमें जो हैं अपनी तकरीबात और अपनी आज़ादी के दिन इतनी ही बेहतरीन तरीके से मनाती हैं। थैंक यू।
कबड्डी मैच में शायकीन ने पहलवानों को खूब दाद दी। जीतने वाली टीम के पहलवानों और शायकीन ने ढोल की ताप पर खूब भंगड़े डाले। फर्स्ट टीम को 2 लाख कैश और ट्रॉफी, जबकि सेकंड टीम में 1.5 लाख कैश और ट्रॉफी बतौर इनाम दी गई। चन्योट से खबर शामिल करें, जहां शहरियों को बेहतरीन माहौल में पुलिस सर्विसेज की आसान फराहमी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। जीपीओ चन्योट का शफाफ तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि किसी किस्म की माली बेज़ाब्तों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से ज्यादा न होगी। अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का अचानक दौरा, वर्किंग का जायजा लिया। जीपीओ ने ट्रैफिक काउंटर पर पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा का भी जायजा लिया। पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की गई। मुल्क भर की तरह कोटछुटा में भी जश्न आजादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। मरकजी तकरीब की सदारत एसी कोटछुटा जाहिद इकबाल गुज्जर ने की। मज़ीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्क भर की तरह कोटछुटा में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश और जज्बा के साथ मनाई जा रही है। रात 12 बजे असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुटा जाहिद इकबाल गुज्जर की क़यादत में चोटी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और खसूसी दुआ कराई गई, जबकि दिन भर तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मुनक्किद की गई। खानपुर मोंजवाला में KPS में रंगारंग तकरीबात प्रोग्राम मुनक्किद हुए। सिंधी सराइकी और पख्तून झूमर का एहतमाम किया गया। रकमों पर टैबलो पेश किए। तकरीब में साबिक वफाकी वजीर सरदार अवैस अहमद खान लगारी के PA सैयद दर शाह, सैयद मजहर हुसैन शाह, मास्टर खादिम हुसैन जोगियानी, जवार गुलाम सरवर अहमदानी, राम यासीन खान लोड, मियाँ मोहम्मद नसीर अहमद समेत दीगर मौज़ीन इलाका मौजूद थे। स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल रज़ाक भट्टी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बेदरे कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया है, अब इसकी हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। कैमरामैन सखर में शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला न थम सका। डिस्ट्रिक्ट मलेर पुलिस क्लब का जनरल सेक्रेटरी हनीफ सोमरू की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाया गया। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सहाफियों ने सखर में शहीद होने वाले सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। सखर में मुसल्लह अफराद के हाथों शहीद होने वाले सीनियर सहाफी और निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हनीफ सोमरू की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सहाफती हलकों से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफियों, सियासी समाजी शख्सियत व सिविल सोसाइटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन का कहना था कि सखर के सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर को मुसल्लह अफराद ने बेदर्दी से कत्ल किया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सहाफी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इससे पहले भी कई सहाफी कत्ल हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक सहाफियों को मारने और उन्हें हिरासा करने का सिलसिला जारी है। इनका कहना था कि सहाफियों ने अपने कलम के जरिए हक व सच का अलम बुलंद किया है। सहाफी अपने कलम के जरिए मजलूम की आवाज को ऐवान बाला तक पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं और बिला खौफ हक व सच लिखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हीं सहाफियों को या तो माफिया की तरफ से मार दिया जाता है या फिर उन्हें हिरासा और उनकी जबान को दबाने की कोशिश की जाती है। मुजाहिरीन ने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि शहीद सीनियर सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दिगर सिंध भर के सहाफी सरापा एहतजाज होंगे। कैमरामैन मुमताज के साथ हरीपुर में यौम आज़ादी के हवाले से शहर भर में दूसरे रोज भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। कमिश्नर हजारा ने मुख्तलिफ तकरीबात में खुद शिरकत की। प्रेस क्लब में अहद वफा के उन्वान से खूबसूरत तकरीब का भी इनेकाद किया गया। राशिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। हरीपुर यौम आज़ादी के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गईं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील इंतजामिया के अलावा शहर भर में मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों ने भी अपनी अपनी तकरीबात मुनक़िद की। कमिश्नर हजारा आमिर सुल्तान खान तरीन ने तकरीबात में शिरकत की और मोटरवे इंटरचेंज पर पौधे भी लगाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर DPO मोहम्मद उमर खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार DFO सरदार फहाद भी मौजूद थे। जबकि हरीपुर प्रेस क्लब में अहद फवा के नाम से गोवा एडवर्टाइजमेंट ने एक पुरकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मिली नगमे, तकरीरी मुकाबले, टेबलो और जिमनास्टिक के शानदार मुजाहरे किए गए।
तकरीब में बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर हरिपुर प्रेस क्लब के सदर जाकिर हुसैन तरोनी ने गोवा एडवर्टाइजमेंट का शुक्रिया अदा किया और खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद को किसी ने प्लेट में रख कर नहीं दिया है, बल्कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। उनका मजीद कहना था कि खेलों के फरोग के देने के लिए फोटो सेशन से हटकर मैदानों में नौजवानों को प्रमोट करना होगा। कि 1947 को ये पाकिस्तान हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया था। इस पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। का जो प्रोग्राम है जैसे शहीद अख्तर अवान साहब, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई नामसाइद हालात में इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया है। तकरीब से शाहिद अख्तर अवान ने खिताब करते हुए कहा, सबसे पहले हमको अपना एहतसाब करना है, दूसरों पे तनकीद बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप से तो हिसाब मांगे। क्या इस मुल्क जिसको मादरे वतन कहा जाता है, एक माँ की तरह इस मुल्क हमको पाल रहा है, इस माँ की तरह हमें मुल्क पालता है। ऐद वफा की तकरीब में मोहम्मद नवाज अवान ने गरीब और मजदूर अफराद को 2 अदद व्हील चेयर, 1 सिलेंडर भी फराहम किया। इस मौका पर मोहम्मद नवाज अवान ने खिताब करते हुए कहा कि गरीब और मुस्तकीन की खिदमत करना हमारी अवलीन तरजीह है। आखिर में मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। शाहिद अख्तर अवान ने तमाम भारत के यौम जमहूरिया को पूरी कश्मीरी कौम आज यौम सियाह के तौर पर मना रही है। इस हवाले से खुसूसी पैगाम में मेंबर जिला कौंसिल हवेली सजाद अहमद कुरैशी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी के सिलसिले में इब्राहिम हैदरी टाउन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में पुरवकार तकरीब चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने परचम कुशाई की, पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह का केक भी काटा। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी नजीर अहमद भुट्टो ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर मरकजी दफ्तर इब्राहिम हैदरी टाउन पर परचम कुशाई की और मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने जश्न आज़ादी पाकिस्तान में परचम कुशाई की और वतन अजीज की 76वीं सालगिरह का केक काटा। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मरकजी दफ्तर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मादरे वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले हीरोज और मुल्क की बका, सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बाबर अली मंगरानी, अराकीन कौंसिल, टाउन अफसरान व मुलाजमीन और सियासी व समाजी रहनुमा तकरीब में शरीक थे। कैमरामैन मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची में भी यौम आज़ादी पूरे जोशो जज्बे से मनाई गई है। सिंध पीस फॉर्म की जानिब से आज़ादी रैली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मलीर के मुताबिक मकामात पर रैलियों और तकरीबात में अर्ज़ पाक से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया गया। मज़ीद जानते हैं मुज्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में। मलीर के इलाके धनी परतो कोट में सिंध पीस फोरम की जानिब से 76वीं यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब मुनक़द की गई। तकरीब में सिंध पीस फोरम के चेयरमैन फैसल अबड़ो, वाइस चेयरमैन मुख्तियार मुगल, जनरल सेक्रेटरी सैयद आफ्ताब शाह, जबार सरकी, राजा इशफाक तुन्यो, अख्तियार चांडियो, सन्नाला शेख, गुलाम अब्बास अबड़ो, आमिर पंवर समेत व दीगर इलाका मोअज़्ज़िन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में यौम आज़ादी का केक काटा गया और सब्ज हिलाली परचम को सलामी पेश की गई। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की सलामती की दुआएं की गई और सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों और मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने वाले जवानों की शहादतों को सराहा गया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। यौम आज़ादी की तकरीब के बाद चेयरमैन सिंध पीस फोरम फैसल अबड़ो की सरबराही में सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बच्चे और बुजुर्गों समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने कौमी परचम लहराते हुए यौम आज़ादी के मौके पर खुशी का इजहार किया और धनी परतो कोट से एक शानदार रैली निकाली गई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खपरों में आईकन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के ज़रिए तमाम जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं खपरों से अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरो के हिंदू कम्युनिटी हॉल में आई कैन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर की जानिब से पाकिस्तान की 76वीं जश्न आज़ादी के मौके पर एक पुरवकार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले करवाए गए, जिसमें बच्चों ने पाकिस्तान की आज़ादी पर तकारीरें पेश की और मिली नगमों पर टेबलोज भी पेश किए। इस मौके पर मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में शील्ड और सर्टिफिकेट और दीगर इनामात दिए गए। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मंगाराम ने प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में उस्ताद हैदर समेजो, शेर खान शाहनी,
हरेश केबीसी जेएमडी पाठशाला के चेयरमैन हरेश राय कीमत राय समेत बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मैं चाहता हूं कि हर स्कूल के अंदर, हर सेंटरों में, जहां पर जितने भी सेंटर्स है, उनको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के अंदर हौसला अफजाई लेकर, क्योंकि हमारा मुल्क है ना दिन ब दिन पीछे जा रहा है। क्यों? एजुकेशन की वजह से बच्चों के अंदर गार्ड्स नहीं है। क्यों यहाँ पर एक शहर छोड़कर, एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? जब हम टीचर्स ऐसे हों, हमारे टीचर्स के अंदर जब गार्ड्स होगा तो हमारे बच्चों के अंदर भी गार्ड्स पैदा हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा अगर हम सपोर्टेबल होंगे बच्चों के, तो हमारे बच्चे भी आगे जाकर वेल एंड गुड होंगे, हमारे मुल्क का नाम जो है फेमस होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे। मुझे 1 साल हो चुका है और अभी तक 3 प्रोग्राम हुए जिन्होंने मैंने पार्टिसिपेट किया है, मगर इस बार मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरी फर्स्ट आ जाएगी। पता नहीं कैसे किस्मत चमक गई और पोजीशन फर्स्ट आ गई। 14 अगस्त का फंक्शन जो हमने रखा है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए रखा गया है। और यही कहूँगी सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो मैं सर मगराम की हूँ कि उन्होंने फंक्शन रखा। इस मौके पर पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के ताइफ भी दिए गए। साथिया को तदरीस के जदीद तरीकों से रास्ता करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। प्रोफेसर वाजिद डॉक्टर जाहिद बिलाल का जामिया अखाड़ा में साथिया की तरबियत वर्कशॉप से खिताब। कहा कि बलागियात के शोबे में पिछले चंद सालों के दौरान बहुत सी जिद्दतें आ चुकी हैं। डॉक्टर जाहिद यूसुफ का कहना था कि हम आलमी सतह पर सोशल साइंस से मुंसलिक साथिया का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं। वर्कशॉप में जदीद तदरीसी रुझानात पर तरबियत फराहम की जाएगी। वर्कशॉप के पहले दिन डॉक्टर सवेरा शामी ने डिजिटल मीडिया पर खुसूसी लेक्चर दिया। डॉक्टर आयशा इशफाक ने तहकीक के नए रुझानात पर भी तफसीली बात की। जीपीओ बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर शराब फरोशों के खिलाफ मुहिम कामयाब से जारी। पुलिस चौकी लाल सुनहरा की कामयाब कार्रवाई में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर नईम अख्तर, अब्दुल्ला, एएसआई बिलाल मुस्तफा ने खुफिया इत्तला पर की। मुलजमान में फयाज उर्फ गोगा, सोहने खान, अस्कर और सलीम नामी शख्स शामिल हैं। कब्जे से सैकड़ों लीटर शराब और दीगर सामान बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। दूध के नाम पर सफेद जाली महलोल का धंधा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। फूड सेफ्टी की टीम गुजरावाला में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए पहुंच गई। मुजहरे सेहत 6000 लीटर दूध बरामद करके फौरन कब्ज कर दिया। डीजी फूड का कहना था कि मौका पर टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। नाकस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि घर में इस्तेमाल होने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त चेक करवाया जा सकता है। ईमानदारी की मिसाल बहावलपुर रेस्क्यू 1122 की एहलकार ज़ेबुन्निसा ने मिसाल कायम कर दी। मुतासरा मामिर खातून को सोने की बालियां घर पहुंचा दी गई। बुजुर्ग खातून को मॉडल टाउन सीपीपल चौक के करीब से बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बुजुर्ग खातून की रेस्क्यू 1122 के एहलकार ज़ेबुन्निसा के लिए खुसूसी दुआएं और शुक्रिया भी अदा किया। एबटाबाद हेल्थ केयर कमीशन की गफलत से शहर में अताइयों की भरमार। शहरी दोनों हाथों से लुटने लगे। हजारों रुपए फीस की मद में वसूल किए जाने लगे और मुतादिद बार निशानदही के बावजूद भी मुतालिका महकमा कार्रवाई करने से काफिर है। मजे जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमान। जी सुलेमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जहां हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अताई डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बारहा निशानदेही के बावजूद इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमशाई दिखाई दे रही है। इसी तरह बात करें अगर एबटाबाद में सप्लाई की, तो वहाँ जंगी के मकाम पर एक हकीम जो कि सिख डॉक्टर है, सिख हकीम है, जिसका नाम गुरबच्चन है, उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह दीगर और की इस तरह के हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करके यहाँ पर लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, जिनके खिलाफ इंतजामिया बिल्कुल कार्रवाई करने से कासर है। और इसी तरह हेल्थ केयर कमीशन की अगर हम बात करें
उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की है तो उनका ये कहना है कि हमें आर्डर जो हैं वो पेशावर से जारी होते हैं, जिसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। इसी तरह जो एबटाबाद का भी मसला है, वहाँ जो डॉक्टर है, जो हकीम है, वो अब महीने में सिर्फ 2 दिन आते हैं। पेशावर से आर्डर ना आने के साथ साथ यहाँ पर जो अवाम है उनको लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इसी तरह उनको जो अद्वियात दी जा रही हैं वो एक ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्टीरॉयड अद्वियात उनको फराहम की जा रही हैं। इसी तरह बिल्कुल इंतजामिया जो है कार्रवाई करने से कासर है। एबटाबाद की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो 2 नंबर डॉक्टर हैं, हकीम हैं, जो कि अताई जिनको कहा जाता है, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए ताकि महकमे सेहत जो है इस चीज़ का नोटिस ले और अवाम की जो सेहत है, अब जाहिर बात है इस सेहत का ख्याल रखना ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, तो हुकूमत इस मामले में तवज्जो दे ताकि जो लूट मार का सिलसिला है ये रुक सके। मंगला डैम में पानी की सतह में तेजी से इजाफा, पानी की आमद 39,457 क्यूसिक हो गई, इखराज 10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। डैम का इंतहाई लेवल 1242 फुट और डेड लेवल 1050 फुट है। डैम में पानी फुल होने में मजीद 2 फुट गुंजाइश बाकी रह गई। मजीद जानते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद जमीर से। जी जमीर, अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़ख़ीरे मंगला डैम पर, जहाँ पे हालिया बारिशों की वजह से पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी के इनफ्लो की बात की जाए तो आज 39,457 क्यूसिक इनफ्लो है, जबकि आउटफ्लो 10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश है वो 1242 फीट है, जबकि डेड लेवल 1050 फीट रिकॉर्ड किया गया है। आज जो पानी का लेवल है वो 1240 फीट तक पहुंच गया है। इस तरह मजीद 2 फुट गुंजाइश बाकी है मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की। पानी 1242 फुट होने पर मंगला डैम के 3 स्पिलवे खोल दिए जाएंगे और पानी को दरिया झेलम में छोड़ा जाएगा। मंगला डैम से मुल्का जितनी आबादियां उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि कमिश्नर मीरपुर ने कश्ती रानी और तैराकी पर दफा 144 हाई कोर्ट का हुक्म, मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन ADCR कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज की जेर निगरानी झीका गली बाजार में किया जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन MC मरी का स्टाफ भी मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि हाई कोर्ट का हुक्म है, मरी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला एक बार फिर शुरू। ऑपरेशन ADCR कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज की जेर निगरानी झीका गली बाजार में किया जा रहा है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन MC मरी का स्टाफ भी मौजूद है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम इलामा इकबाल टाउन में इमाम बारगाह कसरे बतूल में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। बानिया मजलिस शुएब शाह थे। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। 26 मुहर्रम हराम पर सिलसिला शहादत हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम बारगाह कसरे बतूल इलामा इकबाल टाउन लाहौर मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। बानिया मजलिस मोहम्मद शुएब ज़ैन अली ज़ुहैब अली थे। मजलिस के शुरका से खिताब करते हुए अल्लामा तसद्दुक़ हुसैन ने अहले बैत की शान बयान की। अल्लामा साहब का कहना था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक करते वक्त हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की गिरियाजारी। हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तन्हा हजरत इमाम हुसैन की लाश मुतहर को कब्र मुबारक में उतारा और किसी को हाथ तक लगाने न दिया। फिर अपने रुखसार को गुलबुए बरवीदा पर रखा और बहुत देर तक रोए और फिर ये अल्फाज कहे, पाक है वो जमीन जिसने आपकी पाक जिस्म को अपनी गोद में लिया। हमारे लिए अब आपके बाद दुनिया तारीख हो गई और आखिरत आपके नूर से रोशन हो गई। मेरा गम दायमी होगा और रात बेदारी में गुजरेगी, यहाँ तक कि खुदा मेरे लिए वो घर इख्तियार करे जिस पे आप मुकीम हैं। बस फर्जंदान रसूल मेरा सलाम कबूल हो। इसके बाद कब्र मुबारक को बंद कर दिया। फिर हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ता मुबारक को कब्र मुबारक के ऊपर रखा और अपनी शहादत की मुबारक उंगली से इसके ऊपर ये अल्फाज लिखे कि हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब की कब्र मुबारक है, जिनको लोगों ने आलम मुसाफरात में प्यासा शहीद कर दिया। वाक़या करबला के बाद जब भी कोई मदीने आता तो वो ज़ियारत के बाद एक सवाल जरूर करता था, ये किस बीबी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं? तो मदीने वाले कहते, इस माँ के रोने की आवाज़ें हैं जिसका 18 साल का अली अकबर मारा गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन। इख्तिताम मजलिस के बाद शबीह तबूत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस
कसर बतूल आकर अख्ताम पजीर हुआ और शहजादा पार्टी के रूह रवा शहजादा नईम हैदर ने नवा अखवानी की मातमदारी सीना को भी करते रहे और आखिर में बानी मजलिस ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहजादा नईम हैदर, चेयरमैन ट्रेडर्स कैंट बोर्ड मियां अकरम मेहर, आसिम बदर, मलिक अल्लाह वसाया, हमीदुल्लाह खान, राना अशर की पीपल्स पार्टी की बानी कारकुन की रिहाइशगाह पर आमद। बेगम शमीम नियाजी की वफात पर बेटे तारिक नियाजी और बेटी सोनिया खान नियाजी से इजहार ताज़ियत किया। मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। साबिक लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नजीर का NA 127 और UC 128 का दौरा, दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया, फौरी हल के लिए अहकाम भी जारी। ख्वाजा इमरान नजीर की हसनैन अब्बास कासमी की रिहाइश पर भी आमद, बेटी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। अहले खाना से इजहार ताज़ियत के बाद मरहुमा के दर्जात बुलंदी के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ की। इस मौका पर मेहर, उमैर फारूक गुड्डू, मियां मुर्तजा अकरम, आतिफ शाह, चौधरी शबीर, हाजी आसिफ, मलिक जमील, उस्ताद कैसर, शहजाद जट और आसिफ जट भी मौजूद थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से जामे हिकमत के सम्राट महकमाना आमद में मुसलसल इजाफे का ट्रेंड बरकरार। जुलाई 2022 के मुकाबले में जुलाई 2023 की आमदन में 46.38% का बड़ा इजाफा देखा गया। रवामा कमर्शियल स्कीमों, रेंट कलेक्शन, किराएदारी की मुंतकिली, कदीमी बकायाजात की वसूली और कैश बॉक्सेस को भी खसूसी तौर पर फोकस में लाया गया। औकाफ एक सेल्फ रेवेन्यू जनरेटर अदारा है जो अपने वसाइल ही से अपने आप को फंक्शनल रखने के साथ साथ स्टेट और सोसाइटी की दीनी, इल्मी और तहकीकाती इंतजामी हवाले से गिरह कदर खदमत कर रहा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने औकाफ की तामीर और तरक्की के लिए विजन 2023 वज़ा करते हुए माली महसूलात में बेहतरी लाने के लिए जामिया हिकमत अमली का ऐलान किया था। आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और मायूसी से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी यूथ पंजाब के सदर हसन मलही का इजलास से खिताब, कहा कि अवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी मिशन है। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल और अवाम से राबितों को मरबूत बनाकर वोट बैंक बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। इजलास में पीपल्स यूथ लाहौर के सदर यासिर बारा, इमरान हाशमी, एहसन रजा शाह, उस्मान इमरान हाशमी, मोहम्मद इकबाल, नसीम साबिर, बिशारत अली और मुदस्सिर शाकिर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसके साथ कोहिनूर न्यूज का इलाका खबरनामा अपने अख्ताम पर पहुंचा। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।